Alright children, so today we are going to solve some tricky problems of exercise 1A from the chapter Turning Effect of Force, and first I am going to discuss question number 16. Question number 16 is saying that a heavy roller with its axle at O, I have written point wise the question. So there is a heavy roller and its axle is at point O, and this roller is being raised on a pavement which is labeled as XY. Now there is a friction between roller and pavement. You have to show point of application and direction of force required to raise this roller up the pavement XY. And last part of the question is asking if roller is pivoted at O, the center where the axle is, will it go up? So we will take it first, the first part. Just look at the roller. Look at the roller. When it is placed at the pavement XY, right? Then two forces are acting, and no force is acted on this roller. Then two forces are acting. One is gravitational pull and other is reaction force of this surface. And this roller is in equilibrium because the gravitational force is cancelling the reaction force, no problem. Now you apply force on this roller so that it is raised up this surface XY. We can apply the force in I am selecting the three different ways. We can apply force like this. This is the force applied at this point in this direction. The second option is force applied at this point in this direction, and third is force applied at the topmost point in this direction. We can apply in any of the way and this roller will move. Now the first point is to know that the point about which this roller is moving is this point, which is represented in the question as X. Getting the point? If you check out, we can apply force at this point in upward direction. We can apply force at this point slantly. We can apply force at the topmost point. That means we can apply force in different ways, and we can try to rotate it about the point which is here, the point X. Now the point which is given in your question, that there is friction between pavement and the roller. This is very important. See, if there is no friction between the surfaces, then first thing, you will not be able to raise it up. If there is no friction between the surfaces, then instead of rolling about this, instead of rotating about this point and rising up the stairs, this ball will rotate like this, about its axis. This is the first thing which you must know, that if there is no friction between the surfaces, then it is not possible to raise it up about this point. This is first point. That is why in the question they have written there is friction between the surfaces. तो जैसे मड में अगर कार फंस जाती है तो कार का पहिया इस तरीके से रोटेट करता है, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि कार की टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहता। बिल्कुल उसी तरह से अगर जिस पेवमेंट पे ये रोलर ऊपर जाना चाह रहा है उस पर अगर फ्रिक्शन नहीं है
तो ये रोलर इस तरीके से अपने एक्सिस के अबाउट घूमता रहेगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट जो लास्ट में उन्होंने कहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये जो रोलर है ये सेंटर ओ पर इट इज़ पाइवोटेड. If I take being pivoted means the ball or the roller is not free to move now. It can rotate about its axle only. See, if the question is saying that it is pivoted at the center O, and being pivoted means that it is not free to move like this. It is fixed at this point center. Then obviously this roller will not go up. It will rotate about this point like this, like this. So in that case the roller will not be moving up the stairs. And what is that case? If being pivoted means this point is fixing the motion of the ball and ball is allowed to rotate about this point only, then obviously the ball will rotate instead of this point. Instead of this point the ball will rotate about its axis only, like this. It will not rotate about this point. And if it is not rotating about this point, then it will not go up. So the last point is that yes, if pivoted means the ball or roller is fixed and it is allowed to rotate about this pivoted point only, then roller will certainly not go up. It will just rotate about its pivoted axis. Now let us come, after observing all the cases, let us come to the answer. In the first part, question is only asking that point of application and direction of force. So let me tell you that we can apply force at any of these points in upward direction or in such a direction that force is trying to rotate this roller about this point X. Then the roller will leave this surface and will roll and move up. So any force which can rotate this roller about this point is able to raise it up the pavement XY. This is the first point. In this situation, there will be two forces which are already there. एक तो इस पॉइंट का रिएक्शन इस पॉइंट के इस सरफेस के परपेंडिकुलर. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जो सरफेस एक्सर्ट कर रही होती है. दूसरा mg और तीसरा ये. लेकिन ये तीनों केसेस में अगर क्वेश्चन ये हो कि किस केस में हमें कम से कम मिनिमम फोर्स अलाउड है कि हम आसानी से इसे रोल कर ले जाएं, तो वो ये केस है. इफ़ आई अप्लाई द फोर्स हेयर इन अपवर्ड डायरेक्शन, then this roller will move about this point, and in that case force into perpendicular distance will be force into diameter of the roller. That will be the maximum torque possible. अगर इस केस में देखें तो जो टॉर्क अप्लाइड है that will be force into perpendicular distance of the force from point of rotation, and it is radius only. If we see this case, then torque is force into perpendicular distance. Line of action पर इस point से perpendicular डालना पड़ेगा, और you can see that this distance will be less than diameter. So write it dl only. In this case only, the torque will be force into perpendicular distance
that is the diameter, or 2r. So in first case and in third case, the torque is not large enough that it can be greater than torque of second case. So in second case, maximum torque is applied by the same force. फोर्स तीनों में हम सेम लगा रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये चेंज कर रहा है कि टॉर्क कितना इफेक्टिव है. तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क लग रहा है क्योंकि डी परपेंडिकुलर सबसे ज़्यादा है. तो इफ़ द क्वेश्चन इज आस्किंग at which point the force should be applied, I will say the point, this is the diametrically opposite point where the force should be applied in upward direction, so that maximum torque is applied, and with the help of minimum possible force we can raise or lift this ball or roller about this point, and it will rise up the stairs XY, pavement XY. So the answer will be at diametrically opposite point P, as in the diagram 2, force should be applied, as in this case we can raise the roller up with minimum possible force. For the second point, if pivoting the roller implies that we are restricting the motion of roller about O only, then certainly the roller will only rotate about O instead of rotating about X, and we will not be able to raise it up the pavement XY. This is the second part answer. And for the friction, additional notes. This you should note to know the importance of friction present between the roller and the pavement. That if friction is not present between the surfaces, then roller will rotate about its axle through O and will not roll up the pavement. So friction must be there to make the roller roll up the pavement by rotating about point X. Right, so this is answer of question number 16. We have discussed different aspects of the movement of the roller. Now we come to question number 18. I would like to explain this question first. Here, a uniform bar of length L meter is supported at its two ends, and it is loaded by a weight W kilogram force at its middle, and the roller is in equilibrium. Question is asking find the reaction R1 and R2 at the ends. So we will start with the diagram of this arrangement. Now see how we will write this answer. First we will see that this rod is in equilibrium, and equilibrium implies, we will see that rod is in equilibrium. And this implies net force acting on the rod is 0 and net torque acting on the rod is 0. Both are true. And if these two are true, then we will first use this equation to frame the or to relate R1 R2 with the W kilogram force. अब सिंपल पॉइंट, अगर नेट फोर्स 0 है तो ऊपर की ओर 2 फोर्स लग रहे हैं, नीचे की ओर 1 फोर्स लग रहा है. इसका मतलब द फोर्सेज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शंस आर इक्वल टू फोर्सेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो एक इक्वेशन मिल गई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू वेट W. इसके बाद दूसरा इक्वेशन काम में लेंगे. अच्छा, टॉर्क कैलकुलेट करने में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वी हैव टू सेलेक्ट दैट पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क. यानी ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैं समझा दूँ इसी एक क्वेश्चन में कि आप टॉर्क को इस पॉइंट, अगर आप इसको ए बोलो तो पॉइंट ए के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंट ओ सेंटर के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और पॉइंट बी के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हो. अब अगर ए के अबाउट कैलकुलेट करोगे तो ये वेट इस रॉड को नीचे की ओर खींचेगा, यानी क्लॉकवाइज मोशन, और ये रिएक्शन इस रॉड को ऊपर की ओर मूव कराएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. तो अगर आप इसके अबाउट
टॉर्क निकालोगे तो R1 का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, लेकिन इसका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, टॉर्क होगा, और इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये इक्वेशन बनाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज करोगे ना, तो जो मोशन है, रोटेशन है, वो थोड़ा डिफर करेगा। जैसे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अगर मैं कहूँ कि आप इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन या टॉर्क कैलकुलेट करो, आप कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो और आंसर भी दोनों तरह से आएगा। अब क्या करूँगी, मैं पेन को बीच में होल्ड कर लूँगी, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो मैं W का टॉर्क तो चला जाएगा क्योंकि वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा होगा उस केस में, लेकिन ये दोनों, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकेंगे। इक्वेशन R1 और R2 की बन जाएगी। अगर इसके अबाउट देखेंगे तो इक्वेशन W और R2 की बन जाएगी, और अगर मैं B के अबाउट निकालूं तो मैं इसे होल्ड कर लूँगी। अब R1 इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और W इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अब की बार जो इक्वेशन इसके अबाउट बनेगी उसमें इसका और इसका टॉर्क कंसीडर होगा। मतलब ये कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, और ये सिलेक्शन मोस्टली होता है ये देखकर कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। अगर हमें R1 R2 कैलकुलेट करना है तो हम सेंटर के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो O के अबाउट अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि O के अबाउट ये जो R1 है ये इसे क्लॉकवाइज टर्न करेगा और R2 एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने लिखा कि टॉर्क, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट O, देन R1 हैज़ क्लॉकवाइज टॉर्क, और कितना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी दिस लेंथ इज L, सो the half length about from the point of rotation, this length is L by 2. So clockwise torque will be R1 into L by 2. Similarly anti-clockwise torque will be R2 into L by 2 about O. तो ये वैल्यूज़ उठाकर R1 R2 के टॉर्क में रख दी हम लोगों ने। R1 हैज़ क्लॉकवाइज टॉर्क R1 अपॉन L by 2, R2 हैज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क R2 into L by 2। इक्विलिब्रियम पे क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वैल्यूज़ रखी L by 2 कैंसिल हो गया, एंड वी गेट R1 इक्वल टू R2। तो R1 इक्वल टू R2 को हम लोग सिर्फ R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम उस इक्वेशन की तरफ गए जो हमने नेट फोर्स इक्वल टू 0 रख के पाया था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू वेट W। सो इन प्लेस ऑफ R1 सब्सटीट्यूट R एंड R, so 2R is W, so R or R1 or R2 are having value W upon 2. So this is your answer number 18. Now come to question number 17. A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter. इसका डायग्राम हमें बनाना होगा. By suspending an unknown mass M at a mark 20 centimeter. Find value of M. To which side the rule will tilt if mass M is moved to the mark 10? What is the resultant moment now? How can it be balanced by another mass of 50 gram? So we start with the formation of diagram. चलो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं. रूलर का मास 100 ग्राम है और ये मीटर स्केल है, तो एक एंड पर 0 और एक पर 100 होगा. They are saying that scale is balanced at 40 centimeter mark by suspending a mass M at 20 centimeter mark. Obviously जो स्केल का अपना वेट है वो एक्ट करेगा 50 सेंटीमीटर मार्क पर, क्योंकि यूनिफॉर्म स्केल है. तो 50 सेंटीमीटर मार्क पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बीच में बिल्कुल. तो जो वेट ऑफ द स्केल है 100 ग्राम फोर्स, दैट इज एक्टिंग एट सेंटर of the scale, that is at 50 centimeter mark. तो ये जो वेट है ये इस स्केल को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा अबाउट द पॉइंट वेयर इट इज़ बैलेंस्ड लाइक दिस. तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो इस पॉइंट पर, तो आपको एक और मास यहाँ पे सस्पेंड करना पड़ेगा विच कैन एक्सर्ट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and also torque of this
मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ दिस। तो हमने पूरा डायग्राम बना लिया जो फर्स्ट उन्होंने कहा। नाउ दे आर आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन, फाइंड एम। तो बहुत सिंपल है, ये 0, ये 20, ये 40, ये 50 मार्क्स हमने लगा रखे हैं। तो वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, 40 minus 20. This distance is 10 centimeter, 50 minus 40. So simply torque due to mass m must be equal to torque due to weight of the scale W. मास m का टॉर्क हो जाएगा m ग्राम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जिस पॉइंट पर बैलेंस किया है उसके अबाउट, यहाँ मैं फिर बता दूँ, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। ये हमें देखना होगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना सॉल्यूशन को छोटा करता है। तो ऑब्वियसली जिस पर बैलेंस है उसके अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। मास, क्योंकि अगर हम किसी और पॉइंट के अबाउट निकालने की कोशिश करें तो हमें यहाँ इस फल्क्रम का, जिस पर ये बैलेंस्ड है, रिएक्शन फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्यों अपना कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, हम इसके अबाउट ही अपना टॉर्क निकालेंगे। तो m इंटू 20, m ग्राम फोर्स में है, इज इक्वल टू वेट 100 ग्राम फोर्स इनटू 10। So mass m must be equal to 100 into 10 upon 20, that is 50 gram force. This is answer number 1. In the second part they are saying that mass m is shifted towards 10 centimeter mark. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी मास m और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच में, वो अब हो गई है 30 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली दिस इज द सिचुएशन व्हेन टॉर्क्स आर बैलेंस्ड एंड दिस इज द सिचुएशन व्हेन वी इंक्रीज्ड द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ m बाय इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब बैलेंस नहीं रहेगा, और अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो जिधर टॉर्क ज़्यादा है, जो स्केल है वो उस साइड में टिल्ट कर जाएगी। तो स्केल किस साइड पे टिल्ट करेगी? सो आइदर वी राइट द स्केल विल टिल्ट टूवर्ड्स द मास m, और वी कैन से द स्केल विल रोटेट क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। ठीक, तो स्केल टिल्ट हो गई क्योंकि इसका टॉर्क इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट दे आर आस्किंग व्हाट विल बी रिजल्टेंट टॉर्क नाउ। तो बहुत सिंपल है, इस समय जो टॉर्क m का है, वी विल राइट टॉर्क ऑफ m ग्राम फोर्स विच इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी फोर्स m ग्राम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 30। टॉर्क ऑफ वेट ऑफ द स्केल, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो अभी भी उतना ही है, ये अभी भी 10 ग्राम फोर्स 10 सेंटीमीटर्स ही है, क्योंकि ये 50 पर अभी भी है। तो अब किसका ज़्यादा हो गया? 30m ज़्यादा हो गया, और 1000 का जो टॉर्क है ये है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये है यूनिट। तो ये बैलेंस सिचुएशन से क्योंकि अब डिस्टर्ब हो चुका है, तो ये टॉर्क कम है और ये ज़्यादा है। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ। तो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा, m की जगह वैल्यू रख दो 50, तो 50 इंटू 30, दैट इज 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। सो रिजल्टेंट टॉर्क इज m का जो टॉर्क है, जो बड़ा है टॉर्क, यानी 1500 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, माइनस वेट का टॉर्क यानी 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, इसका डिफरेंस आ गया 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है बात? दिस इज रिजल्टेंट टॉर्क, और ये रिजल्टेंट टॉर्क किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज। सो रिजल्टेंट टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना है
और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। In the last part they are asking that if you are given 50 gram weight, then how can you balance this tilted position of the rod? तो किधर का टॉर्क ज़्यादा है, इधर का, और हमें किस तरफ का बढ़ाने से ये बैलेंस हो सकता है, राइट साइड का। क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ाना है, तो हम ये जो 50 ग्राम है इसको किसी पोजीशन पर इधर सस्पेंड कर देंगे। 50 ग्राम फोर्स को पॉइंट ऑफ रोटेशन से राइट साइड में सस्पेंड कर देंगे, जिससे क्लॉकवाइज टॉर्क थोड़ा बढ़ जाए। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो पोजीशन है वो x सेंटीमीटर ले लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो अब ये दो फोर्स इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो स्केल बैलेंस हो जाएगी। तो बस हमें एक बार फिर से क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर कर देना है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। वैल्यू लिखते हैं। ये जो 50 था इसकी डिस्टेंस यहां से है 30, इसका टॉर्क है 100 इंटू 10, इसका टॉर्क है 50 इंटू, हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, तो x। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1500 इज इक्वल टू, ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 50x। ये काम हम सीधे भी कर सकते थे कि हम रिजल्टेंट टॉर्क को जो नया टॉर्क है उसके बराबर रख देते। रिजल्टेंट टॉर्क जो डिफरेंस था दोनों साइड के टॉर्क में, उस डिफरेंस के बराबर ये नया टॉर्क होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, दैट्स बेटर। तो अब हम इस 1000 को इधर ले आते हैं, तो 50x को इधर ले आते हैं और 1500 को इधर ले जाते हैं। तो 50x इज इक्वल टू 1000 माइनस 1500, दैट इज माइनस 500। ये कैलकुलेशन सही कर लो बेटा, यहाँ पे प्लस था, मैंने गलती से माइनस लगा दिया था। तो अब हम 1000 को इधर ले जाएंगे, तो 50x इक्वल टू 1500 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू 500। सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कहाँ से 10 सेंटीमीटर? x हमने कहाँ से लिया है? पॉइंट ऑफ बैलेंस से, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 40 है, तो इससे 10 सेंटीमीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पर ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग आंसर लिखेंगे कि 50 ग्राम फोर्स मस्ट बी सस्पेंडेड at 50 centimeter mark. This will be your answer. The last answer कि जो 50 ग्राम फोर्स है जिससे हमको इसे बैलेंस करना है, वो हम लोगों को कहाँ पे सस्पेंड करना पड़ेगा? 50 सेंटीमीटर मार्क पर ही, जहाँ पे वेट ऑफ द स्केल एक्ट कर रहा है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17. Now check out question number 16. A uniform half meter scale can be balanced at 29 centimeter mark when a mass of 20 gram is hung from its one end. First thing, draw the diagram. Second, find the mass of the half meter rule. Third, in which direction would the balancing point shift if 20 gram mass is shifted इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड? तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। ये रहा हमारा हाफ मीटर रूल, ये एंड 0, ये 50, इसको बैलेंस किया है 29 सेंटीमीटर पर। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 25 सेंटीमीटर होगा, यानी वेट ऑफ द स्केल मस्ट बी एक्टिंग एट 25 सेंटीमीटर. So obviously if you want to balance this weight, this scale about this point, तो ये weight जो स्केल का है वो तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश
करेगा ही, यहाँ से पकड़ा और इधर वेट लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो वेट तुम सस्पेंड करोगे वो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना चाहिए। तो मतलब कि जो वेट हम सस्पेंड कर रहे हैं वो इस एंड से लगाना चाहिए, because they are saying that this half meter scale is balanced at 29 centimeter mark when 20 gram is suspended from one of the ends। तो ये एंड या ये एंड ये ऐसे एनालिसिस करके डिसाइड करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने के लिए इसको 50 सेंटीमीटर मार्क पे 20 ग्राम फोर्स को हमने सस्पेंड कर दिया। नाउ दे आर सेइंग दैट मीटर स्केल इज बैलेंस्ड, सो राइट। पहला क्वेश्चन है वेट ऑफ द स्केल, तो उसके लिए क्या करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका टॉर्क इक्वल होना चाहिए इसके टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द स्केल इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू, that is 29 minus 25, that is 4 सेंटीमीटर। और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हो जाएगा 20 ग्राम फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये हो गया 50 माइनस 29, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब वेट कितना है, बहुत आसानी से निकल आएगा, 20 इंटू 21 अपॉन 4, दैट इज 5 इंटू 21, दैट इज 105 ग्राम फोर्स। यूनिट का ध्यान रखना, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 1 ये डायग्राम, आंसर नंबर 2 ये सॉल्यूशन। तो बैलेंस सिचुएशन ये है, और अगर वो कह रहे हैं कि ये जो मास है इसको आप अंदर की ओर शिफ्ट करो तो पॉइंट ऑफ बैलेंस किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो अगर आप इस 20 ग्राम फोर्स को आप 50 सेंटीमीटर मार्क से अंदर की ओर शिफ्ट करोगे तो आप ये डिस्टेंस कम कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये टॉर्क कम हो रहा है। ये टॉर्क बढ़ाने के लिए आपको इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस डी परपेंडिकुलर को इतना एडजस्ट कर पाओगे कि ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर हो सके। So since they are not asking to calculate the thing, so we will simply write if 20 gram force is shifted inside, then point where we balance the scale should be shifted towards 25 centimeter mark। 25 सेंटीमीटर मार्क को आपको क्रॉस भी नहीं करना है, आप क्रॉस करेंगे तो ये दोनों टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज लगने लगेंगे, और इससे आप अगर इधर ले आए तो ये दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज लगने लगेंगे और स्केल बैलेंस नहीं रह जाएगी। तो यू कैन नॉट से टुवर्ड्स लेफ्ट, यू हैव टू मेंशन टुवर्ड्स 25 centimeter mark, but we don't have to cross 20 centimeter mark। So your simple answer will be towards 25 centimeter mark we will shift this point, so that again torque due to weight of the scale is balanced by torque of 20 gram force। So this is question number 16।